કોરોનાના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં લોકડાઉન છે, ત્યારે બાળકો સાથે સમય પસાર કરવાની જગ્યાએ પરિવારના સભ્યો ઓનલાઈન સિરીઝ જોઈ રહ્યા છે. આવા સમયે બાળકોના સર્વાંગીક વિકાસનું વાલીઓ નથી વિચારી રહ્યા, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સત્પ્રેરણા દ્વારા ઓનલાઈન મસ્તી શાળા સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે વિશે માહિતી આપતા સત્પ્રેરણાના કાર્યકર્તા દેવેન્દ્ર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રેરણામૂર્તિ ભારતી શ્રીજીની પ્રેરણાથી ઓનલાઈન મસ્તી શાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઉનાળાના આ સમયમાં બાળકોને લોકો સમર કેમ્પમાં મૂકતા હોય છે, પરંતુ કોરોનાના કારણે તે શક્ય થઈ શકે તેમ નથી. ત્યારે ઓનલાઈન સમર કેમ્પમાં બાળકોના સર્વાંગીક વિકાસ, શાર્પ માઇન્ડ, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ સાથે ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની ટિપ્સ આપવામાં આવશે. જ્યારે બાળક તેના રોજિંદા જીવનમાં નિત્યક્રમ તરીકે અપનાવશે તો તેનું મગજ એક્ટિવ થઈ જશે, જેના કારણે તેના આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો થશે અને જેના કારણે તે બાળક બીજાઓની તુલનામાં કોઈ પણ વસ્તુ જલ્દી શીખી લેશે. ગુરુવારને 7 મે 2020 થી શરૂ થનાર આ સમર કેમ્પ 25 એપિસોડનો રહેશે. મંગળવાર, ગુરુવાર અને શનિવાર એમ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ 30 મિનિટ ચાલનાર આ એપિસોડમાં ભારતના ભવિષ્યના સંસ્કારનું સિંચન કરવામાં આવશે. સત્પ્રેરણાના ઓફિશિયલ યુટ્યુબ અને ફેસબુક પેજ પર આ એપિસોડ સાંજના 5 થી 5.5 કલાક સુધી લાઈવ કરવામાં આવશે. જો તમે લાઈવ સેશન લેવાનું ચૂકી જાઓ તો તમે તેને ઓફલાઈન પણ જોઈ શકશો. સંપૂર્ણ ABCD ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. પ્રથમમાં બાળક જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કરી શકશે. બીજું છે બિહેવિયર ડેવલપમેન્ટ, જેમાં બાળકોને પોતાની જવાબદારીથી વાકેફ કરવામાં આવશે અને કોની જોડે કેવી રીતે વાત કરવી તે શીખવાડવામાં આવશે. ત્રીજું છે કોન્ફિડન્સ, જેમાં બાળકના આત્મવિશ્વાસની વૃદ્ધિ કરવામાં આવશે. ચોથું ડિસિઝન મેકર, જેમાં બાળક સાચા અને ખોટાનો ભેદ જાણીને પોતાના નિર્ણયને જાતે લે તે માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. પાંચમું છે ઇમોશન બેલેન્સ, જેમાં બાળક કોઈના પ્રભાવમાં આવીને ઇમોશનલી નિર્ણય લઈ તે માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. છઠ્ઠું છે ફેથ, જેમાં લોકોને એકબીજા પર વિશ્વાસ જલ્દીથી નથી આવતો તે માટે બાળકોએ શું કરવું તે શીખવાડવામાં આવશે. સાતમું છે જીનિયસ, જેમાં બાળક દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની પ્રતિભા બતાવીને આગળ આવે તેવું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. આઠમું છે હેલ્પફુલ, જેમાં બાળક પોતાની સાથે સમાજનું વિચારીને આગળ વધે અને લોકોને મદદ કરે તેવા સંસ્કાર આપવામાં આવશે. खोज निकालना, ये गणेश जी के पास इंटेलिजेंसी है. ऐसी हमारे पास भी होनी चाहिए कि हम कोई तीसरा रास्ता निकालें जब हमारे पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या हमारे सामने कोई ऐसी समस्या या ऐसी कोई बात आ जाए, तब हमें भी कोई ऐसा रास्ता निकालना आ जाए, पर वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो, तब आप इंटेलिजेंट हो. अब हम गणेश जी की एक दूसरी कथा सुनते हैं. भगवान वेद व्यास, हमारे 18 पुराण के रचयिता भगवान वेद व्यास, और भागवत कथा आप सुनते हैं ना, उस भागवत को लिखने वाले भगवान वेद व्यास. महर्षि वेद व्यास 18 पुराणों के रचयिता एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो इतना बुद्धिमान हो कि वो बोलते जाए और वह व्यक्ति नॉन स्टॉप लिखता जाए. ऐसा बुद्धिमान कौन होगा? तो उनकी नजर पड़ी गणेश जी पर. गणेश जी इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, मैं महाभारत लिखना चाहता हूं, पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो नॉन स्टॉप लिखता रहे. गणेश जी ने उनकी बात मान ली और कहा कि मैं लिखूंगा. वेद व्यास ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं लिखता जाऊं तो मुझे बीच में रोका ना जाए. जैसे हम लोग ना एक नंबर भी कोई अगर कह देता है तो हम कहते हैं, फिर से बोलना, कोई एड्रेस बता देता है हम कहते हैं, ऐसा करते ना हम लोग, है ऐसा करने की मनाही थी. एक शर्त थी कि आप फिर से नहीं पूछोगे, रिपीट नहीं करोगे और रुकने को नहीं कहोगे. नॉन स्टॉप लिखना है, बहुत बड़ा टास्क है ना. हम तो एक पेज भी नॉन स्टॉप, शायद 2 लाइन भी नहीं लिख सकते. वो गणेश जी ने उनकी वेद व्यास की ये शर्त मान ली कि मैं जब तक आप बोलोगे तब तक मैं फिर से आपको नहीं पूछूंगा कि है आपने क्या कहा. शर्त मान ली गई. दूसरी शर्त में वेदव्यास जी ने गणेश जी से कहा कि अगर श्लोक के उच्चारण में, छंद या मात्रा में अगर मेरी कोई गलती हो जाती है तो उसे भी तुम सुधार कर लिखोगे. बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क. फिर भी बुद्धिमान थे गणेश जी. गणेश जी ने कहा, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है. वेद व्यास जी बैठे, गणेश जी उनके सामने बैठे. अब शुरू होती है महाभारत की कथा और छंद, श्लोक, इतने कठिन कठिन छंद लिखवा रहे हैं. फिर भी गणेश जी ने इतना जल्दी जल्दी लिखा कि
वेदव्यास जी थक गए, पर गणेश जी नहीं थके लिखते लिखते। एक बार भी पूरी महाभारत में गणेश जी ने फिर से नहीं पूछा कि हैं आपने क्या कहा। महाभारत लिखते लिखते बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनकी कलम टूट गई। उनकी कलम जब टूट गई तो बुद्धिमान गणेश जी ने कहा कि अब मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा और मैं वचनबद्ध हूं कि मुझे बिना रोके टोके कांस्टेंट नॉन स्टॉप लिखना है। उन्होंने अपने दांत का आगे का हिस्सा तोड़ दिया और उसको कलम बनाकर फिर से महाभारत लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास और गणेश जी के बीच में श्रवण और लेखन की जो ये विधि चली वो पूरे 3 साल चली। 3 साल में गणेश जी ने पूरा महाभारत लिख डाला, जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं थी। 3 साल में महर्षि वेदव्यास के द्वारा कई छंद बोले गए। कुछ छंद तो गुम हो चुके हैं, पर 10,000 छंदों वाला महाभारत आज भी विद्यमान है, जो गणेश जी ने लिखा है और महर्षि वेदव्यास ने कहा है। आपने सुना होगा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूष की सवारी। सुना है ना, माथे पे तिलक सोहे मूष की सवारी। एक दंत मतलब वो एक दांत उन्होंने उसी नियम के पालन में अपना एक दांत तोड़ा था और अपनी कंटिन्यूटी का वचन निभाया था। बच्चों, आपको बुद्धिमान बनना है। ओम गंग गणपतये नमः। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ओम गंग गणपतये नमः 11 बार जरूर जपना चाहिए। मेरे साथ प्रेम से बोलो, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। आपने देखा बच्चों कि गणेश जी ने पूरा शास्त्र लिख दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ ना रिपीट किया, ना बीच में रुके। कितना ही कंसंट्रेशन पावर है ना गणेश जी में। और एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा है, क्या कहा व्यास जी, क्या कहा, ऐसा एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने। तो गणेश जी एकाग्र भी बहुत थे। एक बार जो सुनते थे वो उन्हें याद रह जाता था, एक बार जो सुनते थे वो उनके दिमाग में फिट हो जाता था। कौन सा एमए पढ़े थे, कौन सा लिटरेचर पढ़े थे और कौन सा पीएचडी किए हुए थे, कौन सा पाणिनि मुनि का व्याकरण पढ़ा था। गणेश जी की मम्मी पापा ने उनके पीछे पढ़ पढ़ के ये नहीं कहा, गणेश लो तुम्हारी किताबें पढ़ो, गणेश तुम पढ़ो, अगर पढ़ोगे नहीं तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, ऐसा नहीं कहा था। अगर तुम इतने मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी, इतने मार्क्स नहीं लाए तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, इतने मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हें मैं घुमाने नहीं ले जाऊंगी या नहीं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा था। फिर भी गणेश जी ने अपना कर्तव्य समझकर अपने माता पिता की शान को ऊंचा रखने के लिए उन्होंने हर वो सद्गुण अपनाया जिससे उनके पूज्य पिताजी शिव जी और माता पार्वती का सिर ऊंचा हो गया। ना केवल देवी देवताओं के आगे वो महान हुए, परंतु सारी भारत भूमि में, विदेशों में भी भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। जो विदेश में भारतवासी रहते हैं वो लोग भी गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। ये उनकी एकाग्रता और इंटेलिजेंसी का प्रताप था। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे। अब आपके लिए आई है एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तैयार? पहली बात, ओम गंग गणपतये नमः, जो आपकी स्क्रीन पर ये मंत्र चल रहा होगा। 11 बार दिन में कोई भी काम शुरू करने के पहले या कभी भी 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपके कमरे में गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, उससे आपको बार बार उनकी बुद्धिमता की, उनकी इंटेलिजेंसी की बार बार आपको याद आती है। तीसरी बात कि कोई नंबर, कोई मोबाइल नंबर कोई हमें एक बार कहता है जो हमने पहले कभी नहीं सुना, हम उससे कोशिश करें कि हम बिना रिपीट किए एक ही बार में वो नंबर लिख लें। अगर वो हम लिख पाते
तो हमारी बुद्धि का स्तर अच्छा है। हम 2 नंबर एक साथ याद कर सकते हैं तो हमारी बुद्धि उससे ज़्यादा तेज़ है, हम इंटेलिजेंट है। और अगर हम 3 नंबर एक साथ, आप ट्राई करके देखिए, कोई एक बार कहे और आप तुरंत लिख दीजिए, बीच में मत पूछिए है क्या कहा, मुझे याद नहीं रहा, कोई नया नंबर, ठीक है। आप ऐसे जितने नंबर याद रखने की, आजकल तो मोबाइल है, आप वो कॉन्टैक्ट्स खोलते हैं और आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपको नंबर मिल जाते हैं। आप कोशिश करिए कि वो आपके मेमोरी में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर याद रखने की कोशिश करिए, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ता है। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ नहीं करते, उनको 100 नंबर याद होते हैं। आपको 10 नंबर भी याद हैं तो कोशिश करिए, ये भी एक टिप है आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा बहुत अच्छा होगा कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर आप कहीं जाते हैं और आपके मम्मी पापा कहते हैं कि फ़लाने अंकल का अरे नंबर तो निकालो, और आप फटाक करके कहते हैं मुझे याद है, तो इतने 10 लोगों के बीच में कितना अच्छा लगेगा ना। और आप इंडिपेंडेंट भी बनेंगे जब आपका मेमोरी ही आपके लिए मोबाइल बन जाए, तो इससे और अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप कम से कम यंत्रों का उपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का उपयोग करिए। कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एक सेंटेंस, जैसे कोई एक श्लोक, उस श्लोक का उच्चारण करो और उसको रिपीट करो। रिपीट करते 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 आप उसे एक दिन में 6 घंटे में अगर आप पक्का कर रहे हो एक श्लोक, तो अगले दिन आप उसे 3 घंटे में पक्का करने की कोशिश करो, उसके अगले दिन आप 1 घंटे में पक्का करने की कोशिश करो। अगर आप ये टारगेट देते हो अपने आप को, तो आप ये पढ़ाई के मामले में भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको याद नहीं रहता है, तो आप एक पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ को पढ़ो और इतनी देर में 15 मिनट में इस पैराग्राफ को मैं लिखूंगा और इतनी देर में 15 मिनट में मैं याद कर लूँगा। याद करके आप अपनी मम्मी के सामने, पापा के सामने, किसी के सामने बोलने की कोशिश करो। इससे भी आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगा।